آج میں آپ کو چاند گرہن کے اثرات کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ چاند گرہن 8 نومبر کو برج زور میں 16 درجے پر لگے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس 16 درجے کے لگ بھگ کوئی جگہ ہے، سور، اسکارپیو، لیو یا ایکویریس کے لیے اس چاند گرہن کے زیادہ اثر و رسوخ میں رہیں گے۔ توقع کریں کہ 6 ماہ تک آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ یا زیادہ شدید، زیادہ طاقتور واقعات رونما ہوں گے۔ چاند گرہن کیا ہے؟ چاند گرہن ایک بہت ہی شدید اور طاقتور پورا چاند ہے۔ یہ عام طور پر چاند سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے چاند گرہن کے موسم کے دوران ہم حکومت کی طرف سے بہت سی خبریں اور تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ عام طور پر واقعات اور حالات ہماری ذاتی زندگی یا اکثر اوقات ہمیں اس دوران زندگی کے اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس بار خاص طور پر چونکہ ہمیں اس چاند گرہن کے ارد گرد ہونے والی بہت سی شدید توانائیاں ملیں گی جو کچھ دن پہلے ہی فعال ہو جائیں گی۔ چاند اس وقت سور میں ہے۔ حقیقت میں واقعی اچھی خبر ہے، کیونکہ چاند لوگوں اور مجموعی طور پر معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ خوشخبری کی علامت ہے، کیونکہ چاند سور میں خوش ہے۔ چاند بلند ہے اور چاند آرام دہ ہے۔ سور ایک مقررہ نشانی ہے، اس لیے اس چاند گرہن کا اثر کچھ دیر تک رہنے کا امکان ہے۔ اس لیے چاند برج میں ایک بہت ہی مثبت مقام پر ہے، جہاں یہ خوش اور آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ ہمیں امید ملتی ہے، اس سے ہمیں روشنی کا اختتام دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اس چاند گرہن کے آس پاس کوئی نیا اعلان ہو سکتا ہے۔ کچھ ضوابط یا قوانین میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں چاند کا سور کی علامت میں اتنا آرام دہ ہونے کی وجہ سے ہم طویل مدت میں دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کچھ اچھی پیش کرے گی۔ ہمارے لیے اجتماعی اور انفرادی طور پر مواقع آئیں گے۔ اس چاند گرہن کے چارٹس کو دیکھیں۔ برج اسد۔ اسد یہ مکمل گرہن سور میں ہے اور یہ گرہن آپ کے لیے بہت معنی خیز ہے، خاص طور پر اس لیے کہ سورج آپ کا حاکم ہے اور سورج کسی بھی چاند گرہن یا کسی نیا پورے چاند میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو بہت گہری سطح پر متاثر کرتا ہے۔ اور یہ ایک مکمل چاند گرہن ہے جو بڑی بڑی اہم تبدیلیوں اور زندہ واقعات کی نشاندہی کرتا ہے جو مستقبل قریب میں رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مقررہ چاند گرہن ہے، اس لیے اثر اور توانائیاں کافی دیر تک قائم رہنے کا امکان ہے۔ اس لیے یہاں 10ویں گھر کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ کیریئر سے متعلق ملازمت میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، انتظامی نگہداشت سے متعلق بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، یا حکومت کچھ نئے قواعد و ضوابط جاری کر سکتی ہے جو آپ کی صنعت کو متاثر کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے کیریئر پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی وقت سورج آپ کا حکمران چوتھے گھر میں ہے، تو یہاں آپ اپنے گھر کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہے ہیں کہ آیا آپ اپنے رہنے کی حالت موجودہ گھریلو صورتحال سے مطمئن ہیں۔ یہاں یورینس سورج کا سامنا کرنا ہے۔ سورج اتنی مضبوطی سے ہے اور یہ آپ کا حکمران ہے، آپ اپنی ذاتی زندگی میں بڑی تبدیلیوں کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جن کا تعلق آپ کے گھر، آپ کے خاندان کی حفاظت، سلامتی اور جذباتی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ چاند گرہن آپ کو جائیداد کی تزئین و آرائش بیچ کر منتقل کرنے کا اشارہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کی تبدیلی بہت سے لوگوں کے لیے آپ کے گھر میں غیر ملکی تبدیلیوں کی تزئین و آرائش کا معاملہ یقینی طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ سورج یورینس کے مخالف ہوگا۔ سورج چوتھے میں ہے اور یہ آپ کا چارٹ ہے، اس لیے اس گرہن کے دوران گھر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اور آپ کے کیریئر میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں جس سے آپ کی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کا تعلق ملازمت کی تبدیلی سے نہیں ہے۔ مکمل کیریئر میں تبدیلی ٹھیک ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کیریئر بدل رہے ہوں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کمپنی میں آپ کے ادارے میں ہونے والی بڑی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کی انتظامیہ میں کچھ ڈرامہ ہو سکتا ہے۔
अपने मैनेजर के साथ, अपने बास के साथ बातचीत करते हुए शायद वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि कोई और उनकी जगह ले सकता है, या शायद आप किसी दूसरे महकमे में जा सकते हैं। आपको तरक्की मिल सकती है, आपकी पोजीशन बदल सकती है। मिसाल के तौर पर आपके अंदर तवानाई की तब्दीली हो सकती है। आपकी बैरूनी दुनिया में, करियर की दुनिया, और कुछ लोगों के लिए ये पेशा ज़िंदगी की पेशा तरक्की के लिए कुछ सीखने की ज़रूरत भी हो सकती है। यहाँ कोर्सेज भी नुमायां हो सकते हैं, क्योंकि मरीख आपके नवी हाउस को पीछे छोड़ देता है, और हो सकता है कि वो आपकी महारत और आपकी तालीमी सतह दोबारा जायजा ले रहा हो। चांद आपके 12वें घर पर राज कर रहा है, लिहाजा आप दिमागी सेहत के मसाइल से निमटने, अब बचपन के जख्मों के मसाइल, माजी के कुछ मसाइल भरने के लिए कुछ रूहानी तलाश भी कर रहे होंगे। ऐसे ड्रामे जो आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं या आपकी ज़िंदगी को अपने करियर के साथ आगे बढ़ाने की सलाहियत को रोकते हैं। घर और करियर यहाँ ज़रूर नुमायां हैं, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों जैसे दोस्ती के साथ साथ आपकी आमदनी में तब्दीलियाँ भी नुमायां हो सकती हैं। शायद उनसे किसी बड़े मालियाती फ़ैसले में ताख़ीर ना हो, क्योंकि आप इस वक्त वाज़े तौर पर नहीं सोच रहे होंगे कि तवानायाँ इतनी बेतरतीब हैं, और आमतौर पर ये चांद ग्रहण चीज़ों को तेज़ कर देगा। इसलिए हो सकता है कि आपका निज़ाम अलौकात लचकदार रहे, क्योंकि आपको इस ग्रहण के अर्द गिर्द कुछ हैरतें उभरती हुई नजर आएंगी। बुर्ज सुम्बुला। सुम्बुला मुकम्मल चांद ग्रहण सौर में है। यहाँ मुकम्मल चांद ग्रहण जिंदगी की कुछ बड़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। आपके 9 घर में जिंदगी के अहम वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, लिहाजा ये किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में है जो गैर मुल्की है, कानूनी मामलात से भी मुंसलिक है। अब इस वक्त आपकी ज़िंदगी के उसूल, आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बदल सकता है, और हो सकता है कि आप अपने उसूलों के साथ साथ अपने एतक़ाद के निज़ाम को भी नए सिरे से मुतय्यन कर सकें। इसी वक्त आप अपनी ज़िंदगी की समत पर सवाल उठा रहे होंगे, और क्या आप इससे मुतमईन हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है या कि कुछ बदलना है? तो यहाँ ये बात यकीनी तौर पर आपके जहन से गुजर रही होगी। अब अगर आप वीज़ा की दरख्वास्त अपने रिहायशी कार्ड के हवाले से किसी मालूमात की तवक्को कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको इस चांद ग्रहण के आसपास इन मामलात के हवाले से खबरें सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ चांद ग्रहण अक्सर औकात बाज़ हालात को इस नतीजे पर पहुँचाता है जहाँ ज़िंदगी के अहम हालात के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही या मुकम्मल आगाही होती है। इसलिए यहाँ ये हर इस चीज़ के बारे में है जो कानूनी है, जो आपकी ज़िंदगी की समझ से जड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ मुहिमजोई और सफ़र की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। आप सफ़र कर सकते हैं, और ये एक बामानी सफ़र हो सकता है, लिहाजा ये सफ़र किसी भी गैर मुल्की सफ़र की तरह नहीं है। ठीक है, ये ज़िंदगी में एक बार के तजुर्बे की तरह हो सकता है, शायद एक ऐसा सफ़र जो वाकई ज़िंदगी का धारा बदलें, शायद ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देखने का अंदाज़ बदल सकता है। अब अगर आप तालिब इल्म हैं, अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रहण आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में भी तब्दीलियाँ ला सकता है। इसका ताल्लुक इससे हो सकता है ट्यूटर और कोर्स छोड़ना और किसी और जगह पर आना। शायद आप फैसला कर सकते हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं और मुकम्मल तौर पर कुछ मुख्तलिफ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल चांद ग्रहण है, लिहाजा ये हमारी ज़िंदगियों में वाकई बड़ी और अहम तब्दीलियाँ लाता है। ख़ास तौर पर अगर आपकी यहाँ कोई जगह है सौर में, स्कॉर्पियो में तकरीबन 16 डिग्री पर, यहाँ यूरेनस सूरज, अतार्द और ज़ोहरा का मुकाबला करेगा। आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अतार्द आपका हाकिम है, इसलिए आप शायद अपनी जिस्मानी शक्ल को भी नए सिरे से मुतय्यन कर रहे होंगे, दूसरों पर आपके तासुरात से ज़्यादा आगाह होंगे। अब अगर आप अपनी शक्ल अंदाज में कुछ बदलना चाहते हैं, तो 8 नवंबर आप 5 से 11 के दरमियान किसी भी वक्त से ग्रेज करने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान चांद ग्रहण होगा, बल्कि ज़ोहरा भी होगा। ज़ोहल और यूरेनस के लिए चैलेंजिंग पहलू बनाएगा, और उसका नतीजा ये इत्मीनान का बाइस बन सकता है। इसलिए यहाँ ये बात जहन में रखने की है कि खूबसूरती के इलाज में महीने की 11 तारीख के बाद तक ताख़ीर करे। इसलिए यहाँ अतार्द आपके करियर की ज़िंदगी पर भी हुक्मरानी करता है, लिहाजा करियर के महाज पर भी तब्दीलियों की तवक्को हो सकती है। इसका ताल्लुक आपकी तंजीम के इंतज़ाम में तब्दीली से हो सकता है, या आप मुख्तलिफ महकमों में जा सकते हैं और हुकूमत नए कवायद और ज़वाबित जारी कर सकती है जो आपकी सनत पर असरअंदाज हो सकते हैं और निजता आपके करियर की ज़िंदगी,
लेकिन यहाँ मुश्तरी आपके 7वें घर में मुंतकिल होने के साथ साथ आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में तवानाई की तब्दीली का तजर्बा होता है और यहाँ मरकरी यूरेनस के मुखालिफ है। शायद इसका ताल्लुक तब्दीली से हो सकता है। कुछ सुंबुला की हैसियत आपके ज़ाती ताल्लुकात में तब्दीलियाँ और आपको एक अहम फ़ैसला भी करना पड़ सकता है जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। इसलिए यकीनी तौर पर हो सकता है यहाँ आपका करियर और आपकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। यूरेनस के असर और रसूख के नतीजे में यूरेनस से आने वाली बेतरतीब तवानाई, लेकिन यूरेनस अक्सर चीज़ों को तेज़ कर देता है, ख़ास तौर पर चांद ग्रहण के दौरान, क्योंकि ग्रहण अपने तौर पर बहुत तेज़ी से वाक़यात का मोड़ लाता है। अब वीनस आपके दूसरे घर पर राज करता है, लिहाजा अपने अखराजात का ख्याल रखें। यूरेनस और ज़ोहरा की मुखालफत के साथ इस वक्त आपके गैर मुतवक्के अखराजात हो सकते हैं और ये तकरीबन 5 नवंबर से शुरू हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि चांद ग्रहण वाले दिन ज़ोहरा पहले ही 5वीं तारीख को यूरेनस के साथ मुखालफत शुरू कर दे। शायद आपको खूबसूरती की चीज़, ख्वाहिश की चीज़ पर पैसा खर्च करने की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन यहाँ किसी भी ख्यालात के अर्द गिर्द के फ़वाइद और नुकसानात देखें जो आप वाज़े तौर पर नहीं सोच रहे होंगे। मरकरी बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए आप हकीकत में इस चांद ग्रहण की तवानाइयों को एक सीधे सादे तरीके से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।